अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum to all of you. The chapter, the topic that is continue from yesterday, the chapter number 13, marketing mix price. After studying the marketing mix product, अस्सलाम वालेकुम। so let's start again the definition. The penetration pricing, where a comparatively low price has been offered हेलो by the marketing department just in order to enter हेलो into the market. We have studied two हेलो purposes of penetration pricing. The first हेलो purpose is to enter into the new market because the firm is new, having the objective, starting with the objective of survival. And the second objective is just to capture the intention of the consumers. दो चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं. सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्टार्ट पे बिजनेस की को मार्केट गेन करने के लिए, टारगेट ऑडियंस को गेन करने के लिए यूज़ की जाती है. सम टाइम ये सक्सेसफुल भी हो सकती है एंड सम टाइम्स ये सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती बिकॉज ऑफ द लो प्राइस इमेज. हर प्रोडक्ट का एक प्राइस इमेज, प्रोडक्ट के साथ एक प्राइस इमेज भी डिस्कस किया जाता है एंड some of the time consumers are not accepted the lower price, especially when the product is considered to be the luxury item. The want sometimes low prices की जो strategy है wants में शायद successful ना हो सके. So penetration pricing will set a low pricing as compared to the competitor price just to enter into the new market and to just capturing the intention of the target audience. In that pricing strategy would be useful in the competitive marketing. जो कल study की गई थी cost plus, that was useful when the competition environment is low, mostly useful in monopolistic environment. When there is no competitor, when there is no form of competition exists in the market, normally cost plus monopolistic behavior में useful है. While penetration pricing useful है जब आप market में when the business do not have something special to offer, उसके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट या उसकी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है कि वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सके विद द कंपैटिटर. उसके पास कोई ऐसी प्रमोशन स्कीम या सेल्स ऑफर नहीं है कि वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सके. सो one method is there, that is a pricing strategy. A low price can be offered just in order to enter into the market. उसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए पेनिट्रेट किया जा सकता है. श्योरिटी ऑफ सेल्स प्रोवाइड करेगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड एक्चुअली इट रेजेस हाई सेल्स रेवेन्यू फॉर द बिजनेस. ईयरली सेल्स रेवेन्यू या 6 मंथ्स अगर आपका बिजनेस स्टार्ट है तो ऑब्वियसली 6 मंथ्स का या क्वार्टर 3 या 4 मंथ्स का आपके लिए सेल्स रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपने पेनिट्रेशन प्राइसिंग को यूज़ करते हुए रिजल्ट्स को चेक करना है कि वेदर आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ये मार्केट में वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही. The drawback, it is actually created a low price image of a particular product, especially the people, the consumers with high income class, they don't bother that product just because of the low price image or low quality. They have a poor perception about the product. They have the poor perception about the penetration price. Normally consumer या audience का ये behavior मार्केट में स्टडी किया जाता है कि वो लो प्राइस प्रोडक्ट्स को या चीप प्रोडक्ट्स को लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी कंसीडर करते हैं. तो ये फिनोमेना कुछ हद तक, काफ़ी हद तक एक्सेप्ट भी किया जाता है, ठीक समझा जाता है. सो एट द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देयर इज अ लो फॉर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू. इंट्रोडक्शन कब तक चलेगा? ये इंट्रोडक्शन आपका 1 मंथ to 3 मंथ तक कंटिन्यू हो सकता है. So
ये इंट्रोडक्शन जो है वो 1 to 3 months तक आपका कंटिन्यू है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग आपने 1 to 3 months तक इसको कंटिन्यू रखना है और चेक करना है। Yes, price skimming. Yeah, skimming pricing. The concept is just opposite to the penetration pricing. The price skimming इसको कहा जा सकता है या skimming pricing. Both terms इसके लिए accept की जाती है। अब premium pricing भी इसके लिए use किया जाता है। अब price skimming, when business have something unique, something special to offer, ये स्पेशलिटी किस फॉर्म में हो सकती है? ये स्पेशलिटी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ये स्पेशलिटी किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, ये स्पेशलिटी उस प्रोडक्ट के किसी फीचर की हो सकती है, ये स्पेशलिटी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी प्रमोशन की हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट की हो सकती है, उससे रिलेटेड किसी सेल्स ऑफर, सेल्स प्रमोशन की हो सकती है, and location as well. The price skimming is also related with the quality of a product, the attached promotions of a particular product, and the place, the location where you are going to sell, where you are going, the location from where you offer the goods and services to your customers. So location considered to be a very important factor in the phenomena of marketing mix. So price skimming, what is meant by skimming pricing or price skimming? First of all, the definition of the price skimming is it is where a relatively high price is offered by the marketing department to the audience, particularly useful for a new product, particularly useful for an innovative product. मार्केट में जब कोई आईफोन का न्यू मॉडल लॉन्च किया जाएगा, ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स एग्जिस्ट करेंगे। सो कंपनी इसके लिए स्टार्टअप पे हाई प्राइस को चार्ज करेगी। A high price is set up, a high price is charged whenever the product has been introduced into the market. A comparatively with the competitors, a high price is set for a particularly new product development, updation of an existing product, or just launch a new innovative product. डेफिनेशन के अंदर ये क्लियरली भी लिखा हुआ है कि ये जो एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो अपडेशन की स्ट्रेटेजी है, इसमें भी स्कीमिंग को चार्ज किया जा सकता है। स्कीमिंग को चार्ज करने के लिए जो फीचर्स आपको बताए गए हैं, दैट द प्रोडक्ट शुड हैव अ डिस्टिंक्टिव क्वालिटी, डिफरेंशिएटेड क्वालिटी, और उसकी कोई प्रमोशन कोई बहुत ज़बरदस्त है जो कि यूनिक है, जो मार्केट में उस जैसी प्रमोशन किसी के पास नहीं है। बिजनेस के पास कोई ऐसा ब्रांड नेम या ब्रांड इमेज है जो कि उसकी परसेप्शन क्रिएट करता है। द बिजनेस हैज़ अ हाई ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड इमेज, ब्रांड रिकग्निशन। बिजनेस के पास कोई ऐसी लोकेशन है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। बिजनेस के पास क्वालिटी परसेप्शन है। कंज्यूमर कंसिडर करता है कि इस बिजनेस की प्रोडक्ट क्योंकि क्वालिटी हैं। जैसे एग्जांपल इसमें ऐड की जाती है कि अगर पोर्शे एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कंज्यूमर या ऑडियंस की ये परसेप्शन है कि इसकी प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। So it creates an opportunity for a car manufacturer to charge a relatively high price due to status, high status, and high brand name, and the concept of brand loyalty is also attached with the price skimming concept. It creates an opportunity to raise a high form of sales revenue during a period of time, during a period of introducing the product and the growth stage. Skimming pricing obviously हमेशा हाई प्राइस नहीं रहेगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेसेस को इसकी प्राइस को रिड्यूस करना होगा, बट एट द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल and the growth stage of a product life cycle, it creates an opportunity to charge high prices comparatively with the penetration pricing.
It also creates a brand perception because product is going to sell to the high price concepts. So ये consumer या audience के लिए ये opportunity create करती है कि pricing को आप comparatively high charge किया जा सकता है. Obviously जो drawback penetration में study किया गया, low price या low profitability at the introduction or the growth stage of a product life cycle, that drawback is going to converted into the benefit in the skimming pricing. That is converted into a benefit in the market skimming pricing, where there is an opportunity to earn higher profitability at the introduction stage and in the growth stage of a product life cycle. Substantially higher profitability का benefit आपको नजर आ रहा है. Perception, good quality image का benefit आपको नजर आ रहा है. एक drawback इसका बताया गया because the product sold with the high or premium pricing, sometimes it may put off some of the potential target audience, वो consumers जो इसके loyal consumers. But sometimes new market की product जैसे iPhone का जो new innovative model है, जो उसका डिवाइस है, might be due to skimming pricing, उसकी pricing इतनी exceed कर चुकी है कि वो consumer की affordability से out हो चुका है. So skimming pricing some of the time irrealistic pricing को भी raise करता है, that is not realized to the market situation, not realized to the income of the people. लोगों की income से out हो चुका है, market की situation से वो product out हो चुकी है. तो skimming pricing का ये डाउनफॉल हमेशा रहेगा. ये डाउनफॉल उस वक्त रिड्यूस हो जाता है जब मार्केट में ड्यू टू स्किमिंग प्राइसिंग द बिजनेस इज नॉट बी एबल टू अर्न satisfactory level of profit, satisfactory level of sales, तो वो ऑटोमेटिकली उस प्राइसेस को रिड्यूस करता है. एंड आफ्टर द रिडक्शन ऑफ दैट प्राइसेस वो देखता है कि मार्केट में सेल्स के रिजल्ट्स जो हैं वो उसको मिलना शुरू हो गए हैं, तो देन स्कीमिंग प्राइसिंग जो है वो आपकी वर्कआउट कर सकती है. माइट बी फर्स्ट फेज में ना वर्कआउट करे. स्कीमिंग प्राइसिंग के 3 फेजेस हैं, a lot high price, a very high price at the introduction and the growth stage, then prices को reduce किया जाता है, middle level पे लाया जाता है, then it is considered to be this phase 2 of skimming pricing. Some of the customer wait करते हैं कि first phase गुजर ले, मोबाइल की या कार की प्राइस reduce हो जाए तब हम उसको second phase में buy करेंगे. एंड देन स्कीमिंग प्राइसिंग का एक थर्ड फेज भी है, बट थर्ड फेज में वो कंज्यूमर्स इसको बाय करते हैं जो कि इनकम कॉन्शियस हैं या जो प्राइस कॉन्शियस हैं, जो लो प्राइस में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं. सो स्कीमिंग प्राइसिंग के 3 फेजेस में प्रोडक्ट को बाय किया जाए. थर्ड फेज जो हमने पढ़ा, इस फेज में प्रोडक्ट थोड़ी सी ओल्ड आउटडेटेड भी कंसिडर की जा सकती है. दैट इज नियर टू द डिक्लाइन फेज, नियर टू द डिक्लाइन. मेच्योरिटी या सेचुरेशन में आप उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, स्टेज 3 पे आप उसको बाय कर रहे हैं, तो डिक्लाइन उसका कंसिडर किया जा सकता है. So skimming pricing is where a high price is charged for a particular product. Benefit is to earn the maximum profitability at the start of the product, at the starting phase of a product life cycle, and in the growth stage of a product life cycle. And the drawback is it might be sometimes product considered to be the pricing with irrealistic pricing in the market. So just एक डायग्राम भी आपके सामने रखी गई है प्राइस स्कीमिंग की और पेनिट्रेशन की. ये इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव मानी जा सकती है. इस डायग्राम में 2 लाइंस को के थ्रू 2 कॉन्सेप्ट्स को बताया गया. पेनिट्रेशन प्राइसिंग को भी डिस्कस किया गया है इस डायग्राम में.
और स्किमिंग प्राइसिंग को भी इस डायग्राम में डिस्कस किया गया। आप देख रहे हैं कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्टार्ट पे लो प्राइस इज चार्ज बाय द बिजनेस एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बिजनेस का इमेज और मार्केट में टारगेट ऑडियंस का इंटरेस्ट इंक्रीज करता है, बिजनेस इज एबल टू इंक्रीज प्राइसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो इंक्रीज है ये 1 मंथ या 3 या 6 मंथ्स अप टू 1 ईयर में इस इंक्रीज को अचीव किया जा सकता है इफ द प्रोडक्ट एंड द बिजनेस इज एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर। penetration का drawback because sometimes consumers are not accepted that business that prices। तो penetration को अगर consumer accept कर लेता है, market accept कर लेती है, then it raise an opportunity to increase price with the passage of time। within 1 year आप penetration को increase कर सकते हैं और आप इस diagram में देख रहे हैं कि graph काफ़ी high तक चला गया। market में competitors के बराबर ला सकते हैं, but it just in order to enter into the market आपको low से start करना है। While in the skimming pricing जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए चार्ज की गई है, हाई प्राइस से स्टार्ट किया गया। आप इसका फर्स्ट फेज देख रहे हैं, वेरी हाई प्राइसेस सेट और विद द पैसेज ऑफ टाइम प्राइसेस को कंपनी ने रिड्यूस किया। एक वक्त आया कि उसका सेकंड फेज हैज बीन स्टार्टेड और सेकंड फेज में आप देख रहे हैं कि प्राइस मिडिल लेवल पे मार्केट में आ चुकी हैं। इवन के एक वक्त ऐसा आया कि वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग को क्रॉस कर रहा है और पेनिट्रेशन प्राइसिंग से भी रिड्यूस मार्केट में नजर आ रहा है। इट मीन्स कि स्किमिंग प्राइसिंग एक वक्त ऐसा आता है कि वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग से भी स्टेबिलिटी में स्टेबल। So the next concept, competition pricing, competitive pricing। कुछ टर्म्स इतनी इजी हैं बिजनेस स्टडीज में। competitive pricing वर्ड से ही पता चल जाता है। just the competitor before deciding the price of a particular product, the business need to look at the competitor price, the market situation, the market। So the competitive pricing is when the product is just charged just like in line। इसमें दो वर्ड यूज किए जाएंगे, इन लाइन और जस्ट बिलो। जस्ट हायर भी हो सकता है, कंपटीटर से आप आगे भी चल सकते हैं, लेकिन स्लाइटली प्राइस इसको चेंज किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल इस तरीके से दी जाती है, इसकी प्राइसिंग। हाँ, इसकी एग्जांपल इन लाइन। इन लाइन मीन्स if the competitors are charging pricing the product with $10, then you are just charging the same price as like the competitor in line, बिल्कुल उसके बराबर। उस और सेकेंडरी मार्केट रिसर्च, मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों रिसर्च यूज की जा सकते हैं। इफ यू हैव द अफोर्डेबिलिटी, यू हैव एलोकेटेड द मार्केटिंग बजट, देन मार्केट रिसर्च में प्राइमरीली सूटेबल है। और अगर you don't have the sufficient resources to secondary में मार्केट को स्टडी जरूर किया जाता है कि what are the competitors are charging for the particular for the same prices that you are offered। so same apply in line just like the market में competitors के in line product की price को charge किया जाता है, या फिर just below the competitors price, just उसके बिल्कुल करीब। अगर वो $10 का आप सेल कर रहे हैं तो आप उसको $9 का या $11 का सेल कर सकते हैं। $11 का सेल करने के लिए यू शुड हैव समथिंग सेपरेट, डिस्टिंक्टिव, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द मार्केट। आपकी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा फ्लेवर, कोई टेस्ट, कोई लोकेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप मार्केट से आगे चल रहे हैं। यू शुड हैव समथिंग, यू शुड हैव समथिंग
यूनिक स्पेशल टू ऑफर, लाइक अगर आपके पास कोई पैकेजिंग ऐसी है, अगर आपके पास कोई ब्रांड नेम यूनिक है आपको लगता है, और आपकी जो लोकेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त प्रीमियम है, आपके पास ब्रांड अटेंशन है, कंज्यूमर की अटेंशन है, आपके पास बिल्ड अप नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं, देन आप $10 से कंपैटिटर से मार्केट से आगे चल सकते हैं। Realistic pricing, competitive pricing is also known as price realization or the realistic prices, because the prices are according to the market situation. सबसे बड़ा बेनिफिट कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन प्राइसिंग का ये है, बिकॉज क्योंकि मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक चार्ज किया गया है, ये रियलिस्टिक है. व्हाट इज meant by the realistic pricing? Means realistic pricing means the actual pricing which is reasonable for the market, which is according to the consumer income, consumer perception, thoughts of the consumers. जो मार्केट की पॉकेट के मुताबिक प्राइसिंग है वो रियलाइजेशन या रियलिस्टिक प्राइसिंग के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है. सो इन एक इसका बिल्कुल एक कॉमन सा ड्रॉबैक और बड़ा एक इजी सा ड्रॉबैक इसका बताया जाता है. Just in order to know the prices of the market, just in order to know the prices offered by the competitor, the business need to conduct the market research before deciding the price. Market research में market में how we can get the prices of the competitor. फील्ड रिसर्च इसका एक आंसर है. फील्ड रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, मार्केट में जाएं, शॉपकीपर से मिलें, कंज्यूमर से, टारगेट ऑडियंस से मिला जा सकता है, जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द प्राइसेस ऑफ द कंपटीटर. अब ये काम काफ़ी इजी समझा जाता है ड्यू टू द सेकेंडरी मार्केट रिसर्च. इंटरनेट सर्च इंजन्स आर देयर. इंटरनेट के थ्रू हम कंपटीटर की प्राइसेस को एक एस्टिमेट ले सको. इसके लिए तो फिर competitive या मार्केट में कंपटीशन को फॉलो करना बड़ा इजी है, बिकॉज द सेम प्राइसेस आर चार्ज एज अलाउड बाय द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी. लेकिन जब हम वांट्स की बात करते हैं तो इसमें मार्केट को स्टडी किया जा सकता है थ्रू प्राइमरी रिसर्च, स्टडी किया जा सकता है, और थ्रू सेकेंडरी मार्केट रिसर्च स्टडी किया जा सकता है. The promotional pricing. Promotional pricing. Most of the time, the brands, high status brands, at the time of out season, just to sell the rid of the stocks, out season stock को sell करने के लिए promotional pricing को use किया जाता है. Promotional pricing is where a low price is offered for a short time period. For example, the price is offered for 30 days or 60 days or 15 days or Eid sales, Christmas sales. All these are considered to be the promotional. जिसमें कोई promotion ऐड की जाती है, buy one get one free, इस तरह की promotion ऐड की जाती हैं. डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं, 50% ऑफ, 30-20% ऑफ, अप टू ऑल आइटम्स. फ्लैट सेल्स के कॉन्सेप्ट आजकल इंट्रोड्यूस किए गए हैं. ब्लेस्ड फ्राइडे के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं. सो ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी द प्रमोशन. प्रमोशन प्राइसिंग के दो पर्पसेस को डिस्कस किया जाता है. जस्ट इन ऑर्डर टू सेल अनवांटेड स्टॉक एज वेल. जो स्टॉक एट द टाइम ऑफ सीजन आउट आपके पास है, इसको आप सेल आउट कर सकते हैं. दूसरा, इनकरेजमेंट ऑफ कस्टमर्स को इनकरेज करने के लिए आप प्रमोशनल प्राइसिंग को यूज कर सकते हैं. वन मोर रीजन इज देयर, व्हेन द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी आउटडेटेड. एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी भी ये पढ़ाई गई थी कि एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी, एक्सटेंड करने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस को मार्केट में प्रमोट किया जाता है, प्रमोशनल प्राइसिंग को ऑफर किया जाता है.
लेकिन याद रखें कि ये प्रमोशन पूरा साल नहीं होती, ये प्रमोशन जो है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। नॉर्मली इसका जो ड्यूरेशन है वो 15 to 30 डेज तक होता है, इसके बाद इस प्रमोशन को ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें एक ड्रॉबैक ये भी स्टडी किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर्स इसमें एक कंप्लेन करते हैं कि जो प्रमोशंस जो हैं वो सिर्फ ओल्ड प्रोडक्ट पे लगाई जाती हैं एंड नो वन इज ऑफ द अनवांटेड स्टॉक that will not sell because the season is ended, and just to encourage customers to buy, just to renew the interest intention of the target audience. Might be आउट सीजन है, आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर जिनको बाय ना करें, सेल्स रेवेन्यू आप जो एक्सपेक्टेड है उसको आप अर्न ना कर सकें। बेहतर ये समझा जाता है कि जो अनवांटेड स्टॉक है इसको सेव करने की बजाय इसको लो प्राइस पे सेल कर दिया जाए, बिकॉज अगर आप इसको नेक्स्ट सीजन के लिए होल्ड करते हैं, माइट भी ऐसा है कि इसकी प्राइसेस स्टेबल ना रह सकें, स्टॉक आपका डिटोरिएट हो जाए, ख़राब हो जाए, या जो टेस्ट और फैशन है वो लोगों का आउट हो जाए। जो क्लोथिंग आपके पास शॉप में अनवांटेड प्राइसिंग एंड द प्रमोशनल प्राइस, so people can ask the question in the question answer session. Allah Hafiz.